डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello, dear students. A very pleasant good evening who are watching me currently. I Pragati Kaji and I welcome you all on a Chaitanya studio under Baba Saheb Ambedkar University, Ahmedabad, Gujarat. Today we are going to study about the subject which name is Business and Industrial Law. So today's learning objectives are: what are the contracts, what are the elements of contract, what is free consent, what is a discharge of contract, what are the types of damages. Before continuing this session, we must know about the meaning of what is a business law. To understand the meaning of business law, we must know about what is a business. Business is a very basic and common word which we perform in our daily life. For example, if I am the owner of a particular startup and I am running a particular business, तो business को हम कैसे define करेंगे? Any activity which I am performing to get some kind of profit is called a business, or act of keeping busy yourself to generate some kind of profit with a social objective is called a business. बिजनेस को समझने के बाद हम समझेंगे कि लॉ क्या होता है. व्हाट इज अ लॉ? The sets of rules and regulation which is enacted by both the houses of a parliament is called law. Collectively business and law को अगर हम एक साथ define करना चाहे तो business law is a subject where we understand about some legal terms, commercial transactions, how to develop a business and how to perform a business in a legal terms. So today's our topic is Indian Contract Act. As we all know that we can't perform any business activity legally if we don't understand the definition of law. So we must know about what is a contract and how we can perform contract with any person or any artificial judicial persons. Okay. Coming to the first slide with the introduction. A contract is one of the most common activity we deal into on an everyday basis, such as buying of garments from a shop, dealing in a shares and mutual funds, taking a loan. In a simple term, if we discuss about what is a contract, we can say contract एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक एग्रीमेंट करते हैं कि मुझे कुछ गुड्स को परचेस करना है, उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट पे करूँगी और हम दोनों मिलकर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. तो जनरल टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. बट व्हाट इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ? लॉ ने हमें क्या बोला है? लॉ ने हमें बोला है, लॉ की जो सेक्शंस 2H है उसके अंदर लॉ ने एक डेफिनेशन दी है कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें बोला गया है एनी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको हम कोर्ट के दरवाजे तक लेकर जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. दिस मीन्स any type of agreement that can be processed in the court is a contract. मीन्स ऐसे एग्रीमेंट जिनको हम कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर एग्रीमेंट की बात की गई है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ की बात की गई है. तो ये सारे टर्म्स हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सपोज मान लो आई एम अ मिस्टर ए हैविंग अ सेल फोन and I am offering my cell phone for a selling purpose for rupees 10,000 to you. मैंने आपको एक ऑफ़र किया कि मैं अपना मोबाइल आपको 10,000 रुपीज़ में सेल करना चाहती हूँ और आपको मेरा ऑफ़र अच्छा लगा, आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया और आपने मोबाइल फ़ोन मुझसे ले लिया और उसके बदले में मुझे 10,000 रुपीज़ दे दिए. तो ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट. राइट? व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट? अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट में बात की एग्रीमेंट की, तो कोई भी एग्रीमेंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं या कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कब होता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे. एज पर द सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट defines an agreement as every promise and every set of promises forming consideration for each other is called agreement.
अब इस पर बात की गई है प्रॉमिस की, तो पहले हमें प्रॉमिस को समझना पड़ेगा। प्रॉमिस एज पर 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? एनी प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। कोई भी प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं प्रॉमिस। तो फिर से उसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट करना चाहूँगी। मैंने आपको ये मोबाइल फ़ोन ऑफ़र किया 10,000 रुपीज़ में, तो मैं क्या हूँ? ऑफ़र देने वाला पर्सन कहलाता है ऑफरर। आपको मेरा ऑफ़र अच्छा लगा, आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया, तो ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाले पर्सन को हम बोलते हैं ऑफरी। तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रॉमिस। और प्रॉमिस के जो सेट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लीगल कंसिडरेशंस ऑब्लिगेट करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, राइट। फ़ोन के बदले आप मुझे 10,000 रुपीज़ दे रहे हो, तो फ़ोन के बदले जो अमाउंट आप मुझे पे कर रहे हो उसको हम बोलेंगे कंसीडरेशन। और हम दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि मैं अपना फ़ोन आपको ही दूंगी और आप 10,000 रुपीज़ मुझे ही देंगे। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे एग्रीमेंट। कंसीडरेशन की अगर हम बात करें तो फिर से वही एग्जाम्पल है कि फ़ोन के बदले आप मुझे अमाउंट पे कर रहे थे, समथिंग इन रिटर्न को जनरल टर्म्स में हम बोलते हैं कंसीडरेशंस। मोबाइल के बदले में आप मुझे 10,000 रुपीज़ दे रहे हो, इसको मैं बोलूँगी कंसीडरेशन। Consideration refers to the intent of accepting the proposal law of contract from one and fulfilling it by another. There should be a consideration that means presence of something to be given and to be received. मतलब किसी चीज़ के बदले कुछ और आप रिसीव कर रहे हो, इट मीन्स देयर मस्ट बी बायलैटरल ट्रांजेक्शन। मोबाइल के बदले कैश को लेना क्या है? बायलैटरल ट्रांजेक्शन है। और कंसिडरेशन का भी मतलब यही होता है, प्रेजेंस ऑफ समथिंग टू बी गिवन एंड टू बी रिसीव्ड। आप इमेज में देख सकते हो देयर इज़ अ सेलर जो कुछ गुड्स बायर को दे रहे हैं और बायर उसके बदले में क्या दे रहे हैं? सम अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? बायलैटरल ट्रांजेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन बोलते हैं। In any promise, there are two parties, one who proposes offer to do something like provide services, sell a product, etc. and the other who agrees for the given proposal. अब किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए देयर मस्ट बी टू पार्टीज। हम खुद से खुद को ऑफर देकर एग्रीमेंट बनाकर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम सेल्फ अफर्मेशन बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा। देयर मस्ट बी टू पार्टीज। एक पार्टी जो होगी सामने वाले को प्रपोजल देगी, सामने वाली पार्टी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, वो एक्सेप्ट करने के बाद जो फिनोमेना डराइव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिस बोलेंगे। और वो प्रॉमिस अगर एक दूसरे पर लीगल ऑब्लिगेशन जनरेट करती है विथ कंसीडरेशन, तब हम इसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, there is a person who is offering to his daughter, if you will get a good marks in your exam, I will give you iPhone, right? एक पर्सन ने अपनी डॉटर को बोला कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओगी तो मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूँगा। और वो डॉटर है, वो बहुत मेहनत करती है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आती है और वो आईफोन की डिमांड करती है। तो वो पर्सन मना कर देता है कि मैं आपको आईफोन गिफ्ट नहीं करूँगा। तो ये क्या है? पर्सनल मैटर है, एक दूसरे के ऊपर लीगल इंटेंशंस क्रिएट नहीं कर पा रहा ये केस। तो ना ही ये कंसीडरेशन की कैटेगरी में आएगा, ना ही वैलिड ऑफर की कैटेगरी में आएगा, ना ही वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। ये सिर्फ पर्सनल प्रॉमिस थी जो फुलफिल नहीं हो पाई। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टर्म इज अ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अभी हमने ऑफर के बारे में समझा, एक्सेप्टेंस के बारे में समझा, एग्रीमेंट समझा, हमने प्रॉमिस के बारे में समझा कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है। जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा, एनी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशन में ही हमको एक टर्म दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी को अगर हम हिंदी टर्म्स में समझना चाहें तो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको हम लीगल टर्म्स में लेकर जा सकते हैं, मतलब कोर्ट के दरवाजे को हम नॉक कर सकते हैं, उसको बोलेंगे इन्फोर्सिबिलिटी। व्हेन an agreement is capable of being referred to in the court of law, it is known as enforceability. साफ साफ आपको डेफिनेशन में दिख रहा है,
when an agreement is capable of being referred to in the court of law, it is known as enforceability. कोई भी एग्रीमेंट अगर वो कैपेबल है कि वो कोर्ट के दरवाजे तक जा सकता है, उसको हम बोलेंगे enforceability. फॉर एग्जाम्पल, ए हु promised to pay ₹50 lakhs to B for a house paid only 30 lakhs. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं आपका घर खरीदूंगा 50 लाख रुपए में, और वो उसको सिर्फ 30 lakhs रुपीस पे करता है. तो 20 लाख का जो डिफरेंस अमाउंट है, उसके लिए क्या दोनों पार्टीज कोर्ट तक जा सकती हैं? द आंसर इज यस. तो इस टर्म को हम बोलेंगे, या इस केस को हम बोलेंगे कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ए एंड बी के बीच, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है. Usually, promises made in personal matters might not be enforceable as there is no legal obligation. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक पर्सन ने अपनी डॉटर को प्रॉमिस किया था कि अगर वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगी अपने एग्ज़ाम्स में, तो वो उसको आईफोन गिफ्ट करेंगे. और वो मेहनत करती है, अच्छे मार्क्स लेकर आती है, लेकिन वो पर्सन उसको आईफोन गिफ्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो प्रॉमिस हुई थी दोनों के बीच में, या हम कह सकते हैं एग्रीमेंट हुआ था, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था. ऑल राइट, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अब हमने एक एग्जाम्पल समझ लिया, सेलिंग ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें वैलिड बनाना है तो कौन से एलिमेंट्स का हमें ध्यान रखना होगा, या कौन से एलिमेंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए. तो लॉ ने हमको कुछ टर्म्स बताए हैं जिनको हमें फॉलो करना है. एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स टू मेक एन एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट वन, फ्री कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज. किसी भी प्रॉमिस को बनाने के लिए, किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दो पार्टीज होना चाहिए, और दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है फ्री होना चाहिए. फ्री कंसेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ये मोबाइल फ़ोन ऑफ़र किया फॉर अ सेलिंग पर्पस फॉर ₹10,000. आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया. क्या हम दोनों के बीच में कोई भी जोर ज़बरदस्ती थी, या क्या मैंने आपको फोर्स किया था कि आप मेरा मोबाइल फ़ोन परचेज़ करो? नहीं. हम दोनों का जो माइंडसेट था, हम दोनों की जो विलिंगनेस थी, जो इच्छा थी, वो क्या थी? एकदम फ्री थी. हमारे ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं थी. सेकेंड वन इज़ अ पार्टीज कॉम्पिटेंसीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दोनों पार्टीज कैपेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में उतरने के लिए. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के ऊपर. ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, एक छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोला कि मुझे आपकी कार चाहिए. छोटे बच्चे ने बोला ठीक है कार ले लो, तो उसने बोला कार के बदले क्या चाहिए. अब छोटे बच्चे को तो इतनी समझ नहीं है कि कार के बदले मुझे क्या लेना चाहिए. उसने बोला कि मुझे एक डेयरी मिल्क दे दो. तो डेयरी मिल्क के बदले आप किसी की कार ओन नहीं कर सकते. ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ पाएँ. थर्ड वन है द कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल. जो भी कंसिडरेशन डिसाइड हुई है, क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, बायलैटरल ट्रांजैक्शन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. एक हाथ से आपको कुछ लेना पड़ेगा, दूसरे हाथ से आपको कुछ देना पड़ेगा, राइट. तो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो कंसिडरेशन डिसाइड हुई है, दैट मस्ट बी लॉफुल. या तो वो गुड्स हो, या तो सर्विसेज हो, या तो कोई भी मनी और मनी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हो. ऐसा नहीं है कि मैंने कंसिडरेशन में डिमांड किया कि आप मेरा सेल फ़ोन ले लीजिए और उसके बदले आप मुझे कुछ ऐसे गुड्स सर्विसेज या कुछ ऐसे आइटम्स में डिमांड करती हूँ जो रियल में परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी लॉफुल और मस्ट बी परफॉर्मेबल होना चाहिए. नॉट डिक्लेयर्ड बाय लॉ. हमारा जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो लॉ के अंदर होना चाहिए. हम लॉ के ऊपर जाकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो हम कोर्ट के दरवाजे तक नहीं जा सकते. तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रपोज़ल है, जो ऑफ़र है, हमारी कंसिडरेशन है, या हमारे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है, वो लॉ के अंदर होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव शुड बी विद इन लॉ.
वही एग्जाम्पल है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के पहले बैठकर डिस्कशन करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल है कि नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है सोसाइटी की वेलफेयर में है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकती जिसमें सोसाइटी के अगेंस्ट या सोसाइटी के वेलफेयर के अगेंस्ट उसके ऑब्जेक्टिव्स हों। फॉर एग्जांपल लिक्वर इज़ बैन इन गुजरात, और मैं किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि मुझे लिक्वर चाहिए एंड मैं उसको सम अमाउंट पे भी करती हूँ, लेकिन वो मुझे लिक्विड की सप्लाई नहीं करता है। तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसके ऊपर फोर्स कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोर्ट तक नहीं जा सकती कि मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉपर वैलिड ऑफर था, वैलिड एक्सेप्टेंस था, प्रॉपर मैंने कंसिडरेशन पे किया हुआ है, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत है, वो लॉ के अंदर नहीं आता है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कवर्ड बाय लॉ शुड हैव एटलीस्ट टू और मोर देन टू पार्टीज हु एग्रीज ऑन द सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस। कॉन्ट्रैक्ट को कवर करने के लिए लॉ ने क्या बोला है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, एक ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले कंसिडरेशन का लेन देन होगा, और दोनों पार्टीज अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगी। दिस इज रिफर्ड एज अ कंसेंसस एड आइडम, इसको हम लैटिन में बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम। दे शुड थिंक और सिमिलर टर्म्स एंड पॉइंट्स एंड अदर शुड बी नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया जाता है तब बैठकर डिस्कशन किया जाता है कि जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करना है। एट अ टाइम ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज शुड हैव अ सिमिलर ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि सामने वाली पार्टी ने कुछ और बोला, आपने कुछ और समझा, आप लोग के बीच में डील साइन हुई और बाद में आप लोग क्या हुए, अपनी ड्यूटी से मुकर गए। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स के अंदर नहीं आएगा। ऑल राइट, हमने एग्जाम्पल तो समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फॉर्म करते हैं और ये हमारी डेली बेसिक एक्टिविटी के अंदर ही आता है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाएंगे या उसके प्रॉपर एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑफ़र। बिना ऑफ़र किए एक्सेप्टेंस नहीं होगा, बिना एक्सेप्टेंस के वो प्रॉमिस में कन्वर्ट नहीं होगा, बिना प्रॉमिस के वो एग्रीमेंट तक नहीं जाएगा, और कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एज पर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड द प्रपोजल when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that offer to such act or abstinence। मीन्स ऑफर को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लॉ ने बताया है, उसको इजी टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लो आई एम अ पर्सन, ओके, एंड आई एम ऑफरिंग माई सेल फोन फॉर अ सेलिंग पर्पज फॉर ₹10,000। तो ऑफ़र बनाने वाला प्लस ऑफ़र देने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऑफरर। और ऑफ़र में मैं क्या ऑब्जेक्ट रख रही हूँ, ऑफ़र में मैं ऑब्जेक्ट रख रही हूँ दिस मोबाइल फ़ोन। तो ऑफ़र क्या है, ऑफ़र ये है कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहती हूँ, दैट्स सिंपल। अब ऑफ़र बनाने के कितने तरीके होते हैं, मैथड्स ऑफ मेकिंग एन ऑफ़र। ऑफ़र बनाने के लिए देयर मस्ट बी अ टू पार्टीज़, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो अगर मैं ऑफ़र देना चाहती हूँ तो या तो मैं बोलकर ऑफ़र दूंगी या तो मैं लिखकर ऑफ़र दूंगी। अगर मैं बोलकर या लिखकर ऑफ़र देती हूँ तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस ऑफ़र। अगर मैं बिना बोले बिना लिखे किसी को ऑफ़र करती हूँ तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लाइड ऑफ़र। अब एक्सप्रेस ऑफ़र को तो हम समझ गए कि मैंने एक्सप्रेसिवली मतलब ओरली बोला कि आई वांट टू सेल दिस मोबाइल फ़ोन। अगर मैं बिना बोले किसी को ऑफ़र देना चाहती हूँ तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो समवेयर एंड आई एम वेटिंग फॉर अ टैक्सी ऑन अ रोड। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट रेज माई हैंड हॉरिजॉन्टली दैट आई वांट टू गो समवेयर। तो टैक्सी मेरे सामने आके रुकती है, मैं टैक्सी में बैठती हूँ, उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, आप मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। तो मैंने ऑफ़र को परफॉर्म करने के पहले टैक्सी ड्राइवर को कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने क्या किया, कुछ साइंस इंडिकेट किए, उस इंडिकेशन के थ्रू सामने वाली पार्टी ने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया, टैक्सी मेरे पास आकर रुकी और मैं टैक्सी में बैठकर चली गई। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं मेट्रो ट्रेन का। हमें दूसरी स्टेशन जाना है तो हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पर
ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन आकर रुकती है, हमारे पास ऑलरेडी टिकट होती है, हम ट्रेन में बैठकर नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तो जब हम बोलकर या लिखकर ऑफ़र देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफ़र। जब हम बिना बोले बिना लिखे बाय सम एक्टिविटीज़ और सम बॉडी लैंग्वेज एंड सम साइंस के द्वारा इंडिकेट करते हैं कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, हम दोनों मिलकर ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफ़र। ऑलराइट, पर्सन टू होम ऑफ़र इज़ मेड। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्पेशल ऑफ़र बनाना है कि नहीं, मैं अपना मोबाइल बेचूंगी तो सिर्फ मिस्टर सी को बेचूंगी, तो इस कैटेगरी के ऑफ़र को हम क्या बोलेंगे, स्पेशल ऑफ़र। जब कोई भी ऑफ़र किसी स्पेशल पर्सन के लिए बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र्स क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू ईयर अभी आने वाला है, बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स आपको बहुत सारे ऑफ़र देंगे कि आप आइए हमारे यहाँ से इतने अमाउंट की शॉपिंग कीजिए, हम आपको इस आइटम पर 10% डिस्काउंट देंगे, दूसरे आइटम पर 20% डिस्काउंट देंगे। तो जब हमने किसी स्पेशल पर्सन को डिफाइन नहीं किया है कि ऑफ़र उसके लिए है, दिस ऑफ़र इज़ अ यूज्ड फॉर पब्लिक, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल ऑफ़र बोलेंगे। कोई भी पर्सन जिसके पास पॉकेट मनी है वो शॉपिंग करना चाहता है और उस दिन जाकर शॉपिंग करता है और उसको डिस्काउंट भी मिलता है, तो ये ऑफ़र क्या हो जाएगा, जनरल ऑफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट ऑफ़र, लकी ड्रॉज, ये सारे ऑफ़र्स क्या होते हैं, यूज टू पब्लिक होते हैं और ऐसे ऑफ़र्स को हम बोलते हैं जनरल ऑफ़र। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट मेक्स एन ऑफ़र लीगल। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी ऑफ़र को लीगल बनाती हैं, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने ये मोबाइल सेल करने का ऑफ़र दिया आपको, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव सही था, उसके बदले में मैंने आपसे 10,000 रुपीज़ लिए, कंसिडरेशन भी अच्छी थी और हम दोनों ने दोनों एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया, दोनों पार्टीज़ खुश हैं, उसको मोबाइल मिल गया, मुझे पैसे मिल गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इसमें कोई डिस्प्यूट्स अराइज़ नहीं हुए, हम दोनों हैप्पी हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मैं अपनी वॉच सेल करना चाहूँ, वो मेरी वॉच परचेज़ करना चाहें, तो हमें ऑफ़र बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है या जिस पर्पज़ के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं वो लीगल रिलेशनशिप जनरेट करने में कैपेबल हो। अगर सामने वाली पार्टी मुझसे मोबाइल लेकर चली जाती, वो मुझे बोलती कि मैं मैम 10,000 रुपीज़ आपको कल दे दूँगी, तो मैं बोलती ओके। अगर वो ऐसा डिले करते जाए और मेरे पैसे मुझे दे ही ना और मेरे से मोबाइल भी ले लें, तो क्या इस केस पे मैं कोर्ट के दरवाजे तक जा सकती हूँ? द आंसर इज़ येस, क्योंकि आप अपना मोबाइल सेल कर चुके हो, आपका राइट है कि आप सामने वाली पार्टी से पैसे लो। अगर सामने वाली पार्टी पैसे देने से मना करती है तो आप डेफिनेटली कोर्ट तक जा सकते हो। सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है धुंधला नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे अपना मोबाइल फ़ोन बेचना है और मैंने दिखाया फ़ोन कि ये वन प्लस नॉर्ड है, लेकिन जब वो पैसे लेकर आते हैं और मैं उनको फ़ोन देती हूँ नोकिया, ठीक है, मैंने तो फ़ोन की, मैं अगर ये बोलूँ कि मैंने तो फ़ोन सेल करने की बात की थी 10,000, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मैं कौन सा फ़ोन सेल करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, ऑफ़र को धुंधला रखा, मैंने उसको क्लियर नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हो या किसी को देना चाहते हो तो आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ ऑफ़र करना चाहिए। शुड बी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चार लोग के बीच में बैठी हुई हूँ और मैं मन में सोच रही हूँ कि यार मुझे अपना मोबाइल सेल करना है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, तो ये भी ऑफ़र नहीं कहलाएगा। ऑफ़र तब कहलाएगा जब मैं क्लियरली बात करूँ कि मुझे ये मोबाइल फ़ोन बेचना है 10,000 रुपये में। ओके, शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफ़र। फिर से वही एग्ज़ाम्पल है, मैंने सिर्फ इनवाइट कर लिया लोगों को, मैं उनके बीच में बैठी हुई हूँ लेकिन मैं क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ, तो ये अच्छा ऑफ़र नहीं कहलाएगा। मस्ट बी कम्युनिकेबल। अगर मैंने ऑफ़र दिया है किसी को और किसी ने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट करने वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे रिवर्स प्रॉमिस के थ्रू बताए कि मैंने आपका
ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है और ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बदले मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा और आपसे मोबाइल लूँगा. Should not include non-compliances equal to the acceptance term, standard form contract or special provision to be well informed in advance. अगर मेरे ऑफ़र के साथ कुछ स्पेशल टर्म एंड कंडीशन है तो ऑफ़र देते समय अगर मैं कोई भी टर्म एंड कंडीशन को हाइड करती हूँ और एक्सेप्ट करने के बाद उस पर्सन को बाद में पता चलता है तो ये भी अच्छा ऑफ़र नहीं कहलाएगा. अगर मैं सारे टर्म एंड कंडीशंस ऑफ़र देते समय बता देती हूँ उसके बाद सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है तो फिर ये ऑफ़र लीगल कहलाएगा. ऑलराइट. अब क्रॉस ऑफ़र के बारे में अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों एट अ टाइम सोच रहे हैं कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन नीलम मैम को दूंगी और नीलम मैम भी उसी टाइम पे सोच रही हूँ कि प्रगति का मोबाइल अच्छा है, मुझे उसका ही मोबाइल ख़रीदना है 10,000 रुपीज़ में. ये पॉसिबल तब होगा जब हमें एक दूसरे के इंटेंशन के बारे में पता नहीं चलेगा और हम लोग एक दिन मिलते हैं और एक साथ बोलते हैं, मैंने बोला मुझे 10,000 में आपको ये मोबाइल फ़ोन बेचना है, नीलम मैम ने बोला मुझे ख़रीदना है, तो हम लोग ने क्या की, एक दूसरे के मुँह की बात छीन ली. तो ऐसे ऑफ़र जिसमें दोनों पर्सन को एक दूसरे के इंटेंशंस नहीं पता होते हैं और सिमिलर ऑफ़र वो एक दूसरे के लिए बनाते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्रॉस ऑफ़र. क्रॉस ऑफ़र ओरली पॉसिबल नहीं है. क्रॉस ऑफ़र्स पॉसिबल तब होते हैं जब हम रिटर्न में एक दूसरे को ऑफ़र करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द सेम डे मिस्टर राकेश सेंट अ मेल टू मुकेश टू purchase a TV for rupees 15,000 as well as Mukesh sent a mail to Rakesh to sell his television for rupees 1,500. दोनों ने सेम ऑफ़र एक दूसरे को भेजा बाय मेल. ठीक है, तो ये ऑफ़र क्या हो गया, एक ने ऑफ़र भेजा दूसरे ने ऑफ़र भेजा तो ऑफ़र क्या हो गया, क्रॉस हो गया. क्रॉस ऑफ़र वैलिड तब होते हैं जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है. या तो मुकेश को राकेश का ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो राकेश को मुकेश का ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब भी वो प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा, देन एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा, देन वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा. ऑलराइट. अब हम समझेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र क्या होता है. ऑफ़र बनाने वाले को हम बोलते हैं ऑफरर, ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाले को हम बोलते हैं ऑफरी. बट एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, तो लॉ ने हमें डेफिनेशन दी है. As per Section 2B of the Indian Contract Act 1872, a proposal is said to be accepted when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, thereby making the proposal a promise. The acceptance by the offeree may be expressed or implied. मतलब जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया था, सामने वाली पार्टी अपनी इच्छा बताती है कि उसने ऑफ़र एक्सेप्ट किया तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र. और जिस मोड में उसके पास ऑफ़र आया है ये उसकी ड्यूटी है. इम्प्लाइड आपका प्रिजम्पशन है कि आपको उसी मोड में ऑफ़र को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो वो कौन सी मेथड होती है जिन तरीक़ों से हम एक ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज़ एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, मतलब बोलकर या लिखकर अगर हम किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस. बिना बोले या बिना लिखे हम किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. जैसे टैक्सी आकर रुकी, उसने भी मुझसे बात नहीं की, मैंने भी उससे बात नहीं करी, मैंने सिर्फ हाथ हॉरिजॉन्टली रेज किया था, टैक्सी आकर रुक गई. ऑफ़र भी इम्प्लाइड था, एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड था. उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ. ऑलराइट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है समझेंगे. सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज़ के द्वारा किया जा चुका होता है. कोई भी पार्टी अपनी ड्यूटी को डिनाई नहीं करती है. तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एसेंशियल जो एलिमेंट है उसका ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज़ unqualified and absolute. The contract should be unqualified and absolute. That means that the proposal should be accepted as being made without any condition, reservation or changes.
जिस मोड में जैसे ऑफ़र बनाया गया था, अगर उसी मोड में उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। मोड ऑफ़ एक्सेप्टेंस, जिस मोड में ऑफ़र को बनाया गया है उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है तो आपकी ड्यूटी है कि आप ऑफ़रर को ये बता दें कि आई हैव एक्सेप्टेड योर ऑफ़र, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया था उसी बंदे ने अगर ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है तो इस टर्म को हम बोलेंगे टू हूम एंड बाय हूम। जिसके लिए बनाया था उसी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। टाइमली एक्सेप्टेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑफ़र दिया कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाहती हूँ 10,000 रुपये में, और मैंने डेडलाइन दे दी कि 3 दिन के अंदर आप मुझे बता दो आप में से किसने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया है। तो क्या है, यहाँ पे मैंने टाइम डेडलाइन दे दी आपको। तो 3 दिन के अंदर जो भी मुझे आके बोलेगा कि मैम मैं आपका ऑफ़र 10,000 रुपये में एक्सेप्ट करती हूँ, आप मुझे अपना सेल फ़ोन दे दीजिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफ़ॉर्म करूँगी। अगर 3 दिन बाद कोई भी पर्सन मेरे पास आता है कि मैम आपने बोला था कि आप अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाहती हो 10,000 रुपये में एंड आई एम रेडी टू परचेस योर मोबाइल फ़ोन, तो मैं क्या बोलूँगी, सॉरी, ऑफ़र इज़ लैप्स्ड ड्यू टू डेडलाइन ऑफ टाइम। आई होप टाइमली एक्सेप्टेंस टर्म क्लियर हो गया। आज के वीडियो में हमने समझा ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, किसी भी ऑफ़र को वैलिड कैसे बनाया जाता है, कंसिडरेशन क्या होती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हमें किन एलिमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करेंगे। आई होप यू लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन वे। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन मेल अस। थैंक यू। स्वाध्यायः परमम्